good evening everyone once again and a very warm welcome to Mo TV. So today again we have with us Prasiddha and Mr. Ram Sharma who are here from the EPOC team to talk about pneumonia in the elderly. So I am going to leave it up to them to explain the topic to all of you. And pneumonia, all of us are aware of what pneumonia is, and a lot of us do get affected by it without realizing it at times. So but more in depth, Prasiddha and Mr. Ramsharan will throw a light on that. So as you all know, EPOC Elder Care is India's expert in dementia and assisted living. We all have discussed that, and in fact, अगर आपको याद हो तो the Lodi function also that we did was from the EPOC location, and you all saw what a beautiful place it was, wherein it provides the holistic, person-centered care that enables elders to have the highest quality of life. And at EPOC, the team believes in focusing on the person as much as the clinical condition. That is the USP of EPOC. And EPOC offers assisted living, dementia care, skilled nursing care, palliative care to elders in need of 24/7 care and assistance. And they try and normalize the life of elders with chronic conditions using person-centered care while focusing on overall well-being and happiness. So EPOC has more than 8 years of relevant experience in India, and EPOC Elder Care is held by Neha Sinha, who is a dementia care specialist, clinical psychologist, and trained in palliative care from Stockholm, Sweden. She has gained international recognition for creating dementia services in India, and EPOC homes are managed under the expertise of registered senior nurses trained in elder and dementia care. So talking about Mr. Ram Sharma, he's the senior facility nurse at the Frida House. He's an MSc nurse and holds an experience of 8.5 years. So with that, I'm going to hand over to Prasiddha and Mr. Ram for talking about pneumonia in the elderly. So Prasiddha, welcome once again, and really happy to have you here with us. Thanks, Ritu. It's a privilege. So over to you. Good evening to all of you. Today we have thought of discussing about a disease condition which is pneumonia, and the elderly population is right now very prone to diagnosed with pneumonia because of many reasons, which is being actually which circulates around the cause and the issues related with pneumonia. So we thought that we will take this topic because sometimes it happens that these symptoms starts occurring, but we are not able to identify it, especially at home. So we are going to discuss in detail about what is pneumonia and what are the symptoms, how can we diagnose it, and what is the treatment part of it. So with me today, I have Ram with me, who is the senior facility nurse. So we will be coordinating and we will be discussing about pneumonia. So what is actually pneumonia? Pneumonia is an infection in the lungs, which can be bacterial, which can be virus, which can be fungal. तीनों चीजों से ये हो सकती है इफेक्ट. और नॉर्मली ये जो डिसीज होता है ये एल्डरलीज को जल्दी पकड़ता है, जल्दी उनको जकड़ता है. इसमें लंग्स के अंदर कई बार पस फिल हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कई सिम्टम्स होते हैं. एंड कई बार ऐसा होता है कि लंग्स में ये चीजें होने लगती हैं, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि हमें हो क्या रहा है. सो अब ये एल्डरली में क्यों ज्यादा होता है, व्हाई इट डेवलप्स इन एल्डरली. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इम्यूनिटी. एल्डरलीज में जो इम्यूनिटी होती है इट इज समटाइम्स लो, and also the elderlies have other comorbidities. उनको कुछ और चीजें होती हैं, जैसे COPD होते हैं कुछ elderlies में जो ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, एस्थमा होता है जिसमें वो ऑलरेडी कफ ले रहे होते हैं, मेडिकेशन ले रहे होते हैं, और किडनी रिलेटेड सम डिजीज होता है जिसमें दे आर टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है. एंड देन द एल्डरली पॉपुलेशन, द पीपल, दे आर प्रोन टू गेट pneumonia. So at home sometimes it is difficult to identify pneumonia. कि कई बार हमें एल्डरलीज को होता है कि कोल्ड कफ नॉर्मल होता रहता है, थोड़ा सा हल्का फीवर आ गया, सो हम उसको बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं. हमको लगता है कि शायद ऐसे ही होगा, वो उतना ज़्यादा हम उसके लिए वी आर नॉट वेरी वरीड अबाउट इट. बट
इन केस अगर आप में से किसी को भी एकदम से बहुत ज्यादा इफ यू आर फीलिंग वीकनेस या फिर गिरना ज्यादा होने लगता है, गिडीनेस होता है, चक्कर आने लगते हैं, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. एंड इन निमोनिया इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल और इट इज ऑलवेज नॉट श्योर दैट यू विल गेट फीवर. आपको फीवर आ भी सकता है, आपको फीवर नहीं भी आ सकता, और कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर आपका कम भी हो सकता है. इन निमोनिया ये भी चीजें होती हैं. एंड स्पेशली अगर कोई एल्डरली आपके घर पे हैं जिनको डिमेंशिया है और वो अगर निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज कि निमोनिया में उनको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, डिलीरियम होता है, थोड़ी सी बहकी बातें ज्यादा करने लगती हैं. सो दैट इज आल्सो अलार्मिंग सिम्टम्स कि हो सकता है कि कुछ इशू है विच कैन बी निमोनिया आल्सो. एंड जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती है, जो दिनचर्या होती है हमारी नॉर्मल रेगुलर, उसमें भी इफेक्ट होता है निमोनिया की वजह से, बिकॉज वी आर लेथार्जिक, वी आर वीक, एंड हमारा नहाना धोना, खाना पीना, बाहर जाना, सब्जी लाना, वो ये सारी चीजों में हमारा इफेक्ट होता है. वेरी इंपॉर्टेंटली हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नाक बंद रहने लगता है, या लगता है कि सांस जब हम ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही हमको खींचना पड़ रहा है, भूख भी कम लगने लगती है. एंड जो हमारी नॉर्मल एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन होती है, जैसे कि हमें अगर एस्थमा का इशू है या फिर हमें सीओपीडी है, एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स या रेस्पिरेटरी, वो थोड़ी सी ज्यादा वर्सन हो जाती है, खराब हो जाती है वो चीजें. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट राम इफ यू कैन ब्रीफ अबाउट जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के. Thank you, ma'am. Hello, everyone. So I'm talking about symptoms of pneumonia. So pneumonia के जो symptoms हैं वो बहुत ही नॉर्मल है और ये किसी को भी हो सकते हैं अगर आपने जरा सा भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया है तो. जिनमें सबसे पहले तो है फीवर. आपको काफ़ी तेज बुखार आ सकता है और सूखी खांसी आपको हो सकती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और मतलब आप कुछ भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप लेथार्जिक हो जाएंगे, फैटिक, थकावट महसूस करने लगेंगे, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड ब्रीथिंग, बहुत जल्दी सांस लेना, और जैसा कि मैम ने बताया कंफ्यूजन, जो कि मैम ने बताया कि डिलीरियम आपको हो सकता है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपकी बॉडी का जो है वो कम हो सकता है, और फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं. चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, जब भी आप खांसी करेंगे या खांसी के साथ आपको फ्लेगम आएगा उस समय आपको चेस्ट पेन हो सकता है. एंड सो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जिनका कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ये आपके निमोनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ निमोनिया. तो बेसिकली निमोनिया जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है कि बैक्टीरियल निमोनिया. बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है. इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड हीमोफ्लूस इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट है वायरल निमोनिया, जो कि वायरल की वजह से होता है, और जो है कि जो भी ये भी 3 तरह के वायरस की वजह से होता है. इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको नॉर्मली हम फ्लू के नाम से जानते हैं. रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, RSV जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है. नेक्स्ट है राइनो वायरस, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं. वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मली बोला जाता है कि वायरल जो फीवर है, वायरल जो निमोनिया है, जो 1 से 3 वीक्स में अपने आप इम्यूनिटी जनरेट करता है और ये खुद से ठीक हो जाता है. बट अगर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा दिन तक हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. नेक्स्ट होता है फंगल निमोनिया. फंगल निमोनिया जो है मोस्टली सॉइल, डस्ट से और बर्ड की जो ड्रॉपिंग होती है उनकी वजह से होता है. और ये जो निमोनिया है, फंगल निमोनिया, जो मोस्टली उन लोगों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है. सो इसके अलावा कुछ और कॉज होते हैं निमोनिया के, जिसमें कि होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है कि अगर आप एक क्लोज्ड कमरे में रह रहे हैं जहाँ पे कोई और जिसको बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है, उसको वहाँ पे छींका है या खांसा है, तो वो बैक्टीरिया हम जब सांस लेते हैं तो हमें इंसर्ट हमारे नाक से जो है अंदर जा सकता है और उससे हमें बैक्टीरियल निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं. ये नॉर्मली होता है जहाँ पे एक ही घर पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं या एक कमरे के अंदर ही काफी लोग रह रहे होते हैं, तो ये वहाँ पे चांसेस होने की संभावनाएं ज्यादा होती है. देन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया विच इज वेरी कॉमन. जब भी कोई एल्डरली किसी भी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहां पे रहने की वजह से, वहां पे क्योंकि वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है, अगर आईसीयू में है
तो आईसीयू में अगर कोई दूसरा पेशेंट है जो निमोनिया से ग्रसित है, तो क्लोज एनवायरनमेंट में रहने की वजह से हम जो किसी और कॉज से रहे हैं निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। एंड ऑल्सो निमोनिया होता है उन एल्डरली रेसिडेंट्स में जो काफी सीरियस कंडीशन में होने की वजह से उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट में डाल दिया जाता है। तो वेंटिलेटर में डालने की वजह से उनको बैक्टीरियल निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज वो जो ट्यूब होती है, जो निमोनिया जो वेंटिलेटर का ट्यूब रहता है, वो हमारे ट्रैकिया से अंदर जाता है, गले में जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो ये बिकॉज हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमने देखा है कि कई बार हॉस्पिटल्स में रहने की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया काफी कॉमन होता है जो एटलीस्ट वेंटिलेटर में है। The other is aspiration pneumonia. तो एस्पिरेशन निमोनिया होता है स्पेशली एल्डरली जिनको जो स्ट्रोक हो चुका है या जो पैरालाइज्ड है, जो चीजों को खाने को ठीक से निगल नहीं सकते, तो कई बार वो फुट की जो पाइप है उसमें जाने की जगह पे वो श्वास नली में चली जाती है। सो वहां जाने की वजह से वो एस्पिरेट कर जाते हैं। एस्पिरेट करने की वजह से जो भी फ्लूइड होता है जो उन्होंने निगल लिया है वो लंग्स में जाता है, एंड जो रेसिडेंट होते हैं वो एस्पिरेशन निमोनिया डायग्नोस हो जाता है। सो नॉर्मली ये कॉमन होता है रेसिडेंट्स जिनको एल्डरलीज जिनको डिमेंशिया है या पार्किंसन है, बिकॉज डिमेंशिया और पार्किंसन ऐसी चीज होती है नॉर्मल जो हमारी निगलने की जो शक्ति होती है तो उसमें इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये हम बच्चों में भी देखते हैं, बच्चों में भी कॉमन होता है, फिर जिसको बोलते हैं ठसका लग जाता है, तो वो सीधे लंग्स में जाने की वजह से एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो राम, अगर आप डायग्नोसिस बता दें। बिल्कुल मैम। सो कुछ डायग्नोसिस हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमें निमोनिया है कि नहीं है। तो जिसमें सबसे पहला है कि ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी और ब्लड कल्चर करके पता कर सकते हैं। सीबीसी के थ्रू हम पता करेंगे कि हमें इन्फेक्शन ब्लड में है कि नहीं है, और ब्लड कल्चर में हम देखते हैं कि हमें कौन सा बैक्टीरिया है जो लंग्स के अंदर ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। सॉरी, मैं आपको 2 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगी। सो सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें पूरी चीजें आती हैं। हीमोग्लोबिन बताते हैं, डीएलसी काउंट है, वो उस ब्लड टेस्ट में मालूम होता है। ब्लड कल्चर जो होता है वो और रिपोर्ट होता है, जिसमें कि मालूम चलता है कि वेदर वी आर इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, वायरल या फंगल। तो वो चीजें हमको मालूम चल सकती हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो कितना अफेक्टेड है निमोनिया से, और उसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो एक्सरे का एक बार पिक दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक नॉर्मल लंग एक्सरे है और एक है निमोनिया एक्सरे। तो नॉर्मल आप देखेंगे इसमें पूरा आप एक एक रिब्स यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, सारा एकदम क्लियर दिख रहा है। और निमोनिया वाला जो एक्सरे है अफेक्टेड लंग टिश्यूज, जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा व्हाइट पैचेस नजर आ रहा है। तो ये जो व्हाइट पैचेस है ये अफेक्टेड लंग्स है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये निमोनिया यहाँ पर शो हो रहा है इस एक्सरे। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री। निमोनिया में जो है बॉडी का ऑक्सीजन लेवल, ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लगता है, तो हमें रेगुलर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री। नेक्स्ट है स्पुटम टेस्ट। इसमें हम जो हमारा स्पुटम होता है उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसमें हम वही वायरस और वायरल बैक्टीरिया और वायरल का हम ग्रोथ की स्टडी देखते हैं कि वो कौन सा वायरस और बैक्टीरिया हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। सो ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है बेड रेस्ट। हमें बेड रेस्ट हमेशा बेड रेस्ट को महत्व देना चाहिए। एल्डरली जो है वो घर में है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, फीवर उनको आता है और कपिंग, उनको चेस्ट लंग्स पेन होने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। तो उन्हें रेगुलर बेड रेस्ट लेना चाहिए। और नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। नेबुलाइजेशन और स्टीम इनहेलेशन हम ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और बस मेडिसिन्स भी होते हैं, जैसे कि अगर फीवर किसी को आ रहा है तो उसमें हम एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, खांसी है तो कफ सप्रेजेंट हम दे सकते हैं। तो ये सारे जो मेडिसिन हैं वो हमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। सो फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर। नेक्स्ट, निमोनिया को हम कुछ हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सो हम इसको प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि जो एल्डरलीज रहते हैं, जैसे जैसे
किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको भी निमोनिया के वैक्सीन लगते हैं। सेम एल्डरलीज को हु आर अबव 65 प्लस जो होते हैं, उनके लिए निमोनिया के वैक्सीन आते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर के साथ में रिव्यू करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन होते हैं आपकी जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं या फिर आपकी एग्जिस्टिंग जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से जो फिजिशियन होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि आपको कौन सा वैक्सीन लगना है। बट फॉर एवरी एल्डरली इट इज मस्ट कि वो हर साल नीमोकोकल के वैक्सीन लगवाए, क्योंकि ये काफी हद तक आपको फ्लू से, निमोनिया से बचा के रख सकते हैं। एंड अपने हाथ आपको रेगुलर हैंड वॉश करना है, जो कि हर जगह बताया जाता है कि हमको अपने हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी होता है। जो एल्डरली स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग अफेक्ट योर लंग्स, तो उसकी वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज फिर आपका जो लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो उतनी ठीक नहीं रहती है। सो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। देन यू हैव टू मेक अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करिए रेगुलर, आप वॉक पे जाइए, बैलेंस डाइट करिए, बैलेंस डाइट खाइए, स्लीप आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, एंड इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, अच्छा खाना खाइए, आप मल्टीविटामिन लीजिए, एंड जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इनको लेने से आप इनसे बचाव कर सकते हैं। सो आई थिंक ये काफी शॉर्ट में था, लेकिन दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने बेसिकली ये टॉपिक इसलिए कवर किया था क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है एंड कोविड के केसेस इतने राइज हो रहे हैं, तो कोविड के एंड निमोनिया के सिम्टम्स ऑलमोस्ट काफी कुछ सिमिलर होते हैं। सो वी जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू कि ये सिम्टम्स अगर कभी भी आपको आते हैं, तो निमोनिया को तो हमें ध्यान में रखना ही है कि दिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ निमोनिया, बट दिस कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ कोविड। तो अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको कभी भी लगते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर अ कोविड टेस्ट एज वेल, एंड डॉक्टर से, फिजिशियन से रिव्यू करवाने के बाद ही मेडिकेशंस लेने। घर पे रखे हुए एंटीबायोटिक्स कभी भी अपने आप से नहीं लेने। ऑफ कोर्स आप स्टीम ले सकते हैं, आप नेबुलाइजेशन ले सकते हैं, बट एवरी टाइम टेक एडवाइस फ्रॉम फिजिशियन, बिकॉज आप लोग काफी दवाइयाँ लेते हैं, उनमें से कोई भी एंटीबायोटिक लेने से रिएक्शन हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। Husband had very rare kind of pneumonia. Doctor told me it's a BOOPS. Short form is BOOPS. So till now he is taking steroid for that, and naturally he has gone weight also has increased so much because of this steroid, and they cannot stop the steroid. Once they tried it, but he was almost collapsed. So what kind of pneumonia is that? BOOPS. So it is something related to bronchiolitis organizing pneumonia, and this is very rare type of pneumonia, and in this corticosteroid is actually required, because as soon we stop taking the corticosteroid, the lungs again start getting infected, and the person will start having the symptoms like wheezing and other things. So this is actually required, and it's a long term therapy. Right, Praveena ji, please continue. हाँ, डॉक्टर नायर, मुझे लास्ट ईयर नवंबर में न्यूमोनिया हुआ था और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थी नोएडा के। उन्होंने मुझे MMF प्रिस्क्राइब किया था, माइसेप्ट 500, उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ देहरादून में मिल रहा है, मैं उसको ले रही हूँ। इस दवा को मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर कोरोना के चक्कर में फर्दर टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं कि मत करिए। तो अगर ये माइसेप्ट 500 में ले रही हूँ लॉन्ग टर्म में, तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी तो होता होगा? ओके, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है नॉर्मली, अगर मैं सही स्पेलिंग। हाँ, यस, इम्यूनो सप्रेसेंट है ये। एक्चुअली मुझे रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, तो डॉक्टर का ये कहना था कि इसके कारण भी लंग्स पे असर आया है आपके। हाँ जी, तो अभी फिलहाल हाँ, तो इसीलिए उन्होंने, बिकॉज एक तो कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट अभी उन्होंने बंद नहीं किया है आपका। I would like to know, are you suggesting that we should get a flu and a pneumonia vaccine, both of them every year? Every year. Both. Both. And in which month? Like I'm in Delhi and it's very cold, so only in the winter, November month or something? राम, हमने एल्डरलीज को भी कौन सी मंथ में दिया है? मार्च में दिया हमने, सेकंड डोज मार्च में दिया है, फर्स्ट डोज दिया था फॉर जनवरी लास्ट। So normally जो हमारे फिजिशियन है डॉक्टर सौमिक, ही एक्चुअली रिकमेंड्स कि हम जनवरी में इसका फर्स्ट डोज लेते हैं, सेकंड डोज हम मार्च में लेते हैं।
But then January is almost the end of the winter. Winter in Delhi starts in November. Yeah, but That's when it becomes. it gives a protection for a year. Okay, but why not? And then flu, when does one take flu? So flu normally we take in the month of November. Okay, so flu first and then pneumonia. Yeah. All right, thank you. But it has to be taken every year. I was thinking that since he is taking this 2012 steroid, so it is almost 10 years. So इसके side effect क्या हो सकता है? And this is called the steroid is the last medicine. You know, after that there no medicine can work. Suppose he has some other problem. So I'm very worried about it. So can you tell me what is the side effects? So पहले साइड इफेक्ट में तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड एपेटाइट अफेक्ट करता है आपका एंड समटाइम्स मूड एंड बिहेवियर भी चेंज करता है अगर हम लॉन्ग टर्म लेते हैं सो मूड एंड बिहेवियर में काफी चेंज होता है और थोड़ा सा चांसेस रहता है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है स्पेशली अगर चिकन पॉक्स वगैरह इन्फेक्शंस होते हैं उसमें बढ़ने के चांसेस। यस राम, इफ यू वांट, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? डायबिटीज भी हो सकता है। हाँ, शुगर बढ़ भी गया है और बहुत भूख बहुत लगता है, मतलब ज्यादा he cannot wait when he lunch time. So he eats well because the steroid he makes him hungry and he has gained weight also. Yeah, and cataract and glaucoma के भी chances काफी बढ़ जाते हैं. So if you can go for a eye review as well. And मेरे ख्याल से आप एक review उनका वापस करवा के देखिए. They want to decrease the dose of corticosteroid or something. Yeah, I went to Ajay Lal Max Hospital. He tried to decrease it, but once he decreased, and then we had to take him to the hospital. We didn't know. Doctor couldn't make out what for these symptoms are coming back. Then they realized that we have stopped the steroid. That's why it is giving him problems. So then doctor realized that he cannot stop that steroid. मुझे कोविड इंजेक्शन लगा था 9 मार्च को, फर्स्ट वैक्सीन, सेकंड को 12 अप्रैल को आया, ठीक है? 9 मार्च को लगा था, कितने वीक्स के? अभी 1 महीना हुआ है, मैं मार्च देन अप्रैल, अभी 1 मंथ हुआ है। 12 अप्रैल को आया है जी, अपने आप पोर्टल में आया है जी। आप लगवा सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 6 to 8 वीक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो आप पर गवर्नमेंट पोर्टल में ही आया ना, ये दिस वाज गवर्नमेंट पोर्टल आल्सो, मैसेज गवर्नमेंट पोर्टल में आया है। गवर्नमेंट ने ही ये गाइडलाइंस किया है 6 to 8 वीक अगर आप लेते हैं तो इम्यूनिटी थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। तो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सतीश जी। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे किसी को बुखार आ गया है और बुखार में थोड़ा सा जुकाम वगैरह या खांसी हल्का सा है, 1-2 दिन रहता है, तो ये कैसे डेफिनेशन किया है कि ये इसको निमोनिया हो गया है या खाली बुखार से काम चल जाएगा, बुखार की दवा ले ले, या निमोनिया पहले चेकअप कराना पड़ेगा तभी काम चलेगा? तो निमोनिया के साथ में आपको ब्रीदिंग इशू भी आएगा और ब्रीदिंग इशू के साथ में आपको कफ भी निकलेगा। जो कोविड के सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स इसमें होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि फीवर भी आएगा। इसमें यही एक चीज होती है कि फीवर भी नहीं आता है कई बार, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि निमोनिया है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको 2 दिन फीवर आ रहा है, लगातार फीवर आ रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं फिर भी आपको फीवर आ रहा है, तो सीबीसी करके टेस्ट होता है जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, वो आप करवा ही लीजिए। वो आप जैसे ही करवाओगे तो उसमें मालूम चल जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। फिर उस इन्फेक्शन के तहत फिर हम बाकी की कार्रवाई और बाकी की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर 2 दिन से ज्यादा अगर फीवर आ रहा है तो उसको घर में लेके नहीं बैठना है, अपने आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। आज के जो जितना जैसा आज का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर चल रहा है उसके हिसाब से। One thing that I am having a very heavy breathing issue from quite some time now. Post my positive in November, and I got negative in November only. But then thereafter, I'm having the heavy breathing, fast breathing. And then with homeopathy, I was better in January, February. But again, from last 1 month, I'm having this heavy breathing issue. I got my ECG done few months back, and that time doctor said that because of a heart palpitation, HAVI,
this heavy breathing, and because of anxiety, this is there. So I'm currently having homeopathy. I hope nothing to worry in that sense, or any recommendation. It's just fast breathing and heavy breathing. Okay, so you were COVID positive? I was in November. Okay, and after getting the negative report, have you done a CT or anything of chest? What you said? CT of chest, CT scan. No, I got in my X-ray. So Okay. X-ray was fine. Okay. So normally in some of the hospitals, after getting a COVID negative report, generally they suggest for doing a CT chest as well, because in CT chest you will get all the details if any lungs is being still affected, or sometimes there is a predisposal effect of COVID और वो कई months तक रहता है, तो उसकी वजह से भी there is sometimes people experience this breathing difficulty and everything. So if possible, get a CT chest done, so it will give a clear picture of how your chest is there, because X-ray पूरा report नहीं देता है, CT gives the detail. It is 99. Then it is fine. Maybe something related to because of the climate or something. Are you allergic to dust or anything? I am allergic to dust, and I have a lot of anxiety issues, at least from last 4-5 months. Do some yoga and you will feel little bit change. Otherwise, nothing to worry. Oximeter always show 98 and 99. Then it is fine. You are absolutely fine. Just do some yoga and deep breathing exercise. You will be fine. Thank you so much, everyone, for all the questions. And thank you so much, Prasita. Thank you so much, Mr. Ram, for being here and talking on this topic where there was so much of confusion about the injections and the vaccines and everything. And of course, pneumonia के जो आपने symptoms बताए हैं, sometimes I think we take it too casually. So thank you for clarifying all those things, Prasita and Mr. Ram. And thank you for being here.